Guys, welcome back to my channel. So today we will do political science challenges of nation building. I hope you have seen the previous means the Monday's video that is of English. Yeah, I have here written also English as you can see. So previous you have seen the video of English. So yeah, it was good. It was about it was about Sahib. Like, the rag picker. Okay. So now today we will do challenges of nation building, chapter 1, lecture 4. Now let's start it. First we will do the recap and then we will move forward. Now uh, what we have studied till now, you will just imagine that and just we will move forward. Now see, we got means India attained independence on 40. See, okay. ओके ना अब पहले हमारी हमारे देश को सोने की चिड़िया बोलते थे। जब ब्रिटिशर्स आए तो वो सोने की चिड़िया कहीं उड़ गई। ठीक है, तो वो सोने की चिड़िया कहीं उड़ गई। अब वो ब्रिटिशर्स लूट पाट के डिवाइड एंड रूल करके चले गए, तो वो सोने की चिड़िया उड़ गई, चली गई कहीं। तो हमारा जो जो नेशन ने चैलेंज उस पल उसने जो चैलेंजेस फेस किए और जब उसको इंडिपेंडेंस मिली, जब ब्रिटिशर्स छोड़ के चले गए, तब भी उन्होंने चैलेंजेस फेस किए। चैलेंजेस ख़त्म नहीं हुए। जी है, तो चैलेंजेस ख़त्म नहीं हुए। तो इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन मिडनाइट 14 से 15 अगस्त 1949। India attained independence. And Jawaharlal Nehru, addressed the first prime minister addressed a special session, the Constituent Assembly that night. The fa- this What was the famous speech of Jawaharlal Nehru? You have not commented me. Why? I want the answer in the comment section that what was the famous speech of Jawaharlal Nehru? I want it. Please give me the answer in the comment section. And please like, subscribe my channel for more updates. Please start studying from now. Just be serious. This class is most like serious class. Don't be like you have just gone through 11th class. Now don't regret and just move on. Just move on to the 12th. So now let's get started. So just now you will pause the video and write what was the famous speech of the Jawaharlal Nehru. I want the answer in the comment section. Now, so I want the answer in the comment section. What was the famous speech by Jawaharlal Nehru addressed to the Constituent Assembly? So our independence is on 15th August 1947 and the Pakistan's independence is on 14th August 1947. Okay, whatever questions you have, what is this, what is that, please mention it in the comment section. I will really uh, welcome it and just reply on it. Okay, so now let's get started. So challenges of nation building. So challenges of nation building. Now अब फ्री इंडिया जो at the hour of midnight on 14th and 15th August 1947, India attained independence. Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of Free India, and he addressed a special session of the Constituent Assembly that night. What was the name of the famous speech? Write in the comment section. Just pause the video and write. Now, uh, now uh, there was just now there was two goals that there was two goals that almost everyone agreed upon. One
was that one was that that after independence we shall run our country through a democratic government. Second, the government will be good for all and especially for poor and disadvantaged group. Okay, now these two are there, and this year 1947 was unprecedented and trauma of displacement मीन्स इतना खतरनाक डिस्प्लेसमेंट था, इतना लाइक ऐसे हमें छोड़ के गए थे ब्रिटिशर्स, ऐसे हमारी कंट्री को छोड़ के गए थे ब्रिटिशर्स कि मतलब बहुत गंदी सिचुएशन में हमारी इंडिया को ब्रिटिशर्स छोड़ के गए थे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि भाई ब्रिटिशर्स ने सॉरी हमारे लीडर्स ने लूज होप नहीं की, हमारे लीडर्स ने होप छोड़ी नहीं, वो न्यू नेशन को बनाते गए और जो न जितने भी चैलेंज आए उन्होंने ओवरकम किया, उसे फेस किया। ठीक है, फिर हमने ये पढ़ा कि देयर वाज 3 challenges. First, the first and the immediate challenge was to shape a nation that was united yet accommodative with the diversity of with the diversity in our country, in our society. The second challenge was to establish democracy. The third challenge was to ensure development and well-being of the entire society, not only some sections. ठीक है, now then what we have studied, तो हमने क्या पढ़ा, फिर हमने वो 3 challenges के बाद पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन पढ़ा, जिसमें हमने देखा और 14 से 15 अगस्त 1947 से means 2 nations, not one country got independence, 2 country got independence. One was India and second was Pakistan. So like the 2 nation theory was हाँ, अब देखो मैं स्टोरी सुना रही हूँ। So see, ओके, तो 3 challenges अपने हमारे लीडर्स ने 3 challenges फेस किए। First was the means we have to see, I am again repeating, the first challenge was to the first and the immediate challenge was to shape a nation that was united yet accommodative with diversity in our society. The second challenge was to establish democracy. The third challenge was to ensure development and well-being of the entire society and not only some sections. Okay, so this was that. Then we got independence on 15th August 1947 midnight, and then not one country, 2 countries got independent, that is Pakistan and India and Pakistan. India, अब ना जब पार्टीशन हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, तो ये जो 2 नेशन थ्योरी थी, ये किसने दी थी? 2 नेशन थ्योरी वाज गिवन बाय जो उनके उधर के प्राइम मिनिस्टर थी, पाकिस्तान के जो पीएम थे, द मोहम्मद अली जिन्ना। हाँ, मोहम्मद अली जिन्ना ने ये 2 नेशन थ्योरी का वो दिया था, क्या दिया था? 2 नेशन थ्योरी दी थी, किसने दी थी? मुस्लिम लीग ने दी थी। अब जो ठीक है, तो जैसे हमारे नोट पे हम देखते हैं ना कि महात्मा गांधी की पिक्चर है, क्योंकि उन्होंने ये नेशन बनवाने में बहुत मदद दी है, मतलब पूरा नेशन उन्होंने बनाया। तो उधर पाकिस्तान में वो लोग ये मानता है कि मोहम्मद अली जिन्ना, अगर आप पाकिस्तान का नोट देखोगे तो वहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना की फ़ोटो होगी, तो वो ये लोग ये मानते हैं कि उनका देश मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया। ठीक है, फिर हमने ये देखा कि ये इससे मतलब ये जो 2 नेशन थ्योरी से ये कांग्रेस बिल्कुल इसके अपोज थी, कांग्रेस इसके फेवर में नहीं थी, और इसके और कुछ लोग चाहते भी नहीं थे। हाँ, प्रोसेस ऑफ पार्टीशन फिर हमने देखा
कि प्रोसेस ऑफ पार्टीशन में हमने चैलेंजेस कुछ देखे। तो उन चैलेंजेस में हमने देखा कि क्या देखा कि इंडिया वुड बी डिवाइडेड इनटू टू कंट्रीज, इंडिया एंड पाकिस्तान। रिलीजियस मेजॉरिटी थी। हाँ, अब ये फर्स्ट चैलेंज ये था कि भाई उन्होंने ये मांगा था कि जहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम्स होंगे वहाँ पे हम पाकिस्तान बना देंगे। तो मुस्लिम्स मुस्लिम्स मेजॉरिटी में एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं थे, मुस्लिम दो जगह थे। वो था वेस्ट पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान। मतलब दोनों जगह मुस्लिम्स मतलब मेजॉरिटी में नहीं थे, समझो, एक जगह मेजॉरिटी में नहीं थे, दोनों जगह थे। तो इसलिए उन्होंने दोनों लगाया, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है, तो first of all there was no single belt. So first of all there was no single belt of Muslim majority areas in the British India. Means there was no single belt of majority of of Muslims in the particular area. Yeah, British India, in areas in British India. So there was two areas of concentration, that was west and east. ठीक है, another one of second, not every Muslim wanted Pakistan. Not every Muslim wanted Pakistan. Khan Abdul Ghaffar Khan, the undisputed leader of frontier, northern western frontier province, and are known as Frontier Gandhi. तो वो ये लोग नहीं चाहते, पर इनका आवाज़ दबा दी गई। Third problem was that two Muslim majority. The third problem was that two Muslim majority provinces of British India, Punjab and Bengal, had very large number of non-Muslims. Where in majority, मतलब Muslims कुछ बंगाल में थे, कुछ पंजाब में थे, वो majority में थे। तो two provinces would be bifurcated according to the religion. उसमें भी कुछ जो मुस्लिम्स थे पंजाब और बंगाल में, कुछ जो मुस्लिम्स थे उनको भी पाकिस्तान में शिफ्ट करवा दिया। सो उनको भी पाकिस्तान में शिफ्ट करवा दिया गया। तो जो आप ज़्यादातर मुस्लिम देखोगे ना, या तो वो पंजाबी मुस्लिम्स हैं या तो वो बंगाल मुस्लिम्स हैं, मतलब बंगाल से आए हैं या तो वो पंजाब से आए, तो ज़्यादातर ऐसी मुस्लिम्स मिलेंगे। ठीक है, टू प्रोविंसेस वुड बी बाइफर्केटेड मतलब सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस मेजॉरिटी टू द डिस्ट्रिक्ट और ओवर दी और लोअर लेवल, डिस्ट्रिक्ट में कर देते या लोअर लेवल पे। जो हमने फोर्थ प्रॉब्लम देखी थी, फोर्थ प्रॉब्लम तो सबसे मेजर वाली देखी थी कि प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ बॉर्डर। मतलब पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी कौन थे मुस्लिम, मतलब जैसे बोथ साइड्स ऑफ बॉर्डर माइनॉरिटीज, प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। तो प्रॉब्लम मतलब कि क्या हुआ था कि जो सॉरी, इंडिया में कुछ मुस्लिम्स रह गए थे और पाकिस्तान में कुछ हिंदूज रह गए थे। तो वो इधर से उधर डिस्प्लेस नहीं हो पाए थे क्योंकि उनको पता ही नहीं था कहाँ जाने कहाँ नहीं जाना। तो इसलिए कुछ मुस्लिम्स इधर रह गए और कुछ जो हिंदूज थे वो पाकिस्तान में रह गए। और तो इसलिए तो वो लोग तो इनको हिंदूज को मार ही रहे थे। मतलब हाँ, एक तरफ आप देखो ना कि देश आज़ाद हो गया, दूसरी तरफ जो माइनॉरिटीज में उनको मार रहे हैं। हमने नहीं मारा था मुस्लिम्स को हमने नहीं मारा था, बोला हमने उनको रेफ्यूजी कैंप्स में रख दिया था कि तुम देखो, फिर हम देखते हैं कहाँ रखना, कहाँ सेटल करवाना, या उनकी प्रॉपर्टी वही थी तो वो वही थे, हमने उनको कुछ नहीं किया। पर पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने हमारे हिंदूज को मारा, पीटा, बहुत सारे हिंदूज की जान ली उन्होंने। ठीक है, बहुत सारे हिंदूज की उन्होंने जान ली है, हमने कुछ नहीं किया, उन्होंने सब किया पाकिस्तान वालों ने। ठीक है, जैसे
गंदे दिल वाले हैं, मतलब दिल में वो भी नहीं है कि भाई ह्यूमैनिटी भी नहीं है। चलो, फिर आया था कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन। तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन में क्या पढ़ा हमने कि ये लाहौर, अमृतसर, कोलकाता जो बॉर्डर के पास थे, ये कम्युनल जोन बन गए, क्योंकि बॉर्डर के पास में थे तो लोग इधर ही आके सेटल हो रहे थे। फिर आगे लोग मतलब कोई जैसे हिंदू या सिख सिख की एक एरिया बना दी कि हाँ यहाँ पे हिंदू सिख रहेंगे, यहाँ पे मुस्लिम रहेंगे। तो अगर पाकिस्तान में हिंदू जाते थे तो उनको वही मार दिया जाता था, और अगर इंडिया में मुस्लिम्स आते थे तो ऐसा कुछ नहीं हो, मतलब ये मानते थे पर आई डोंट नो होता था कि नहीं, ये बोलते थे लोग, मतलब बुक में लिखा है, होता भी होगा कि हिंदूज या सिख्स की एरिया में चले गए मुस्लिम तो बच के वापस नहीं आएंगे, और अगर मुस्लिम्स की एरिया में हिंदू या सिख्स चले गए तो फिर वो बच के कभी वापस नहीं आएंगे, ऐसा था। ठीक है। फिर उसके बाद ये भी हमने पढ़ा कि जो भी लोग जैसे पाकिस्तान से इंडिया आ रहे हैं तो उनको रेफ्यूजी कैंप्स में हमने रखा। तो हमने कहाँ रखा? रेफ्यूजी कैंप्स में रखा, टेंट लगा के रख दिया। और जैसे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और ये सब भी हेल्पलेस थे। क्यों? क्योंकि इनको भी नहीं पता था कि हमें यहाँ जाना, पाकिस्तान में जाना है या इंडिया में जाना है, तो उनको भी नहीं पता था। रेलवेज भी डिवाइड हो गई। और हाँ, हमने ये भी देखा था कि चिल्ड्रंस गॉट सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड वुमेन्स वर रेप्ड। मतलब जब शिफ्टिंग हो रही थी यहाँ से वहाँ, पाकिस्तान से इंडिया, इंडिया से पाकिस्तान, बंगाल से मुस्लिम, पाकिस्तान, ये सब, तो जब ये सब हो रहा था तो शिफ्टिंग में वुमेन का रेप हो रहा था, किडनैप कर रहा था, जो एबडक्ट, उस पर जो वुमेन थी वो उसको फोर्स किया जाता था कि चेंज करो अपना रिलीजन, और जो रिलीजन एबडक्टर का है, मतलब जिसने उसको किडनैप किया है उसका रिलीजन है, उसका रिलीजन अडॉप्ट करो। ये सिचुएशन थी। और अब जो मेल्स थे, अब उनको तो अपना फैमिली ओनर था कि भाई ये किसी कोई गंदे हाथ ना लगाए इसे, कोई गंदी तरीके से छुए ना इसे, कुछ ना हो। तो उन्होंने क्या किया कि भाई इसको कुछ ना हो, इसलिए अच्छा, मतलब ये किसी और से बहुत तड़पे और ये सब करे, तो इससे अच्छा मैं ही इसको मार देता हूँ। तो वो मेल जो जो लाइक वाइफ अपनी डॉटर, अपनी माँ, अपनी बहन को मार देता है। सो देखो कितना अनप्रेसिडेंटेड वॉयलेंस है और ट्रॉमा है। सी, मतलब, और ये डिवीजन ऑफ हार्ट, जो राइटर्स थे, पोएट्स थे उस समय के, उन्होंने इसको डिवीजन ऑफ हार्ट्स बोला, क्योंकि हार्ट्स के, ये दिल के उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिए। दिल का उन्होंने दो, जो हमारा यूनाइटेड दिल था मुस्लिम्स और हिंदुस्तान का, जो ये यूनाइटेड दिल था उसे तोड़ दिया, दो हिस्सों में तोड़ दिया, डिवीजन ऑफ हार्ट्स कर दी। ठीक है। तो ये पूरी, और जो एम्प्लॉयज़ थे, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थी, रेलवेज थी, वो भी डिवाइड हो गई। जो रेलवेज पाकिस्तान की बॉर्डर तक थी तो वो पाकिस्तान में चली गई, और जो इंडिया तक थी वो इंडिया में रह गई। और जो पाकिस्तान के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे वो पाकिस्तान में चले गए, और जो इंडिया के थे वो इंडिया में थे। ठीक है, ये हुआ। फिर आज हम करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स को कैसे जोड़ा गया इंडिया में, और गवर्नमेंट अप्रोच का आधा पढ़ेंगे, या पूरा पूरा ही मान लो, पूरा ही पढ़ेंगे। ठीक है। तो वी हैव डन द रिविजन, रिकैप, एंड जस्ट लेट्स मूव फॉरवर्ड। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन है उसमें लिख दो। इसकी पीडीएफ चाहिए नीचे लिख देना, मैं दे दूँगी, मैं प्रोवाइड करवा दूँगी। जो भी चाहिए मैं प्रोवाइड करवा दूँगी, बस आप नीचे लिख देना। ठीक है। So now let's get started. Now, integration of princely states. Okay. So, okay, now get started with the challenges of nation building, chapter 1, lecture 4. Now, let's get started. Integration of princely states. Okay. Now,
British India was divided into what were called the British India. Okay, wait for a minute. ये मैप देख रहे हो आप? ये मैप है इंडिया बिफोर एंड आफ्टर पार्टीशन. ओके, सो मैं अपनी एनसीईआरटी निकालती हूँ. दिस इज माई एनसीईआरटी. टेक आउट योर एनसीईआरटी टू. एंड कौन सा ये इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स. सो टेक आउट दी. हाँ, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली. So as you can see in the page 15 of your book, this map. So as you can see, this yellow portions. These yellow portions were British India, means under the control of British. See, yellow. These yellow portions now were this yellow, this. These yellow portions now were these yellow portions indicates that these states were under the direct control of British India. Under the direct control of British India. ठीक है, अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल. ठीक है, और तो ठीक है, ये जो येलो येलो पार्ट है, ये है ब्रिटिश इंडिया, मतलब जो डायरेक्ट कंट्रोल में था ब्रिटिश रूल के. और ये जो ब्लू ब्लू है नाउ, अब ये जो ब्लू 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 है, ये ठीक है, ये ब्लू 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 है, ये जो ब्लू 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 है. ठीक है, तो ये जो ब्लू ब्लू है वो प्रिंसली स्टेट्स थे, मतलब कि वहाँ पे मोनार्की थी, मतलब राजा रूल करते थे. तो ये जो मतलब इन्होंने क्या किया, अब ये लोग गए तो होंगे प्रिंस राजा के पास कि भाई हम तुमसे बैटल करते हैं, बैटल करके हम तुमको हरा देंगे, तो फिर हमारा पूरा जो ब्लू ब्लू है वो भी हमारे कब्जे में आ जाएगा डायरेक्ट ब्रिटिश इंडिया में. इन्होंने क्या किया, फिर अब जो राजा डर गए कि भाई नहीं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ. कौन सा एग्रीमेंट साइन हुआ कि उन्होंने बोला कि आपको पैसे चाहिए ना. अब मेन मुद्दा तो आपका यही है ना कि आपको पैसे चाहिए, तो मैं आपको मंथली उसमें आपको पैसे दे दिया करूँगा, बस अब मेरे को पावर दे दो. तो उसने बोला ठीक है, पैसे के मकसद से तो आए थे, वो लूट नहीं तो आए थे, तो बस ठीक है. तो ये हमने देखा, इतना समझ में आया. तो इसलिए जो डर गए तो वो पैसे दे देते थे इन्हें, तो इसलिए ये जो पूरा ब्लू 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 है, तो ये प्रिंसली स्टेट्स है. ठीक है, अब British India was divided into what were called the British Indian province and the princely state. दो में डिवाइड थे, ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट्स. प्रिंसली स्टेट्स जिसमें राजा रूल करते थे, और इसमें जिसमें डायरेक्ट कंट्रोल था ब्रिटिशर्स का, इसमें इनडायरेक्ट कंट्रोल था ब्रिटिशर्स का. The British Indian province were directly under the control of the British government, जो मैंने आपको बताया. On the other hand, several large and small states ruled by princes. जो princely state जो blue blue में थे, वो जो princely states थे, वो कौन रूल करा उसको रूल करा राजा ने. Enjoyed some form of control over their internal affairs as long as accepted British. जितने मतलब जैसे ही उन्होंने ब्रिटिश सुप्रीमेसी, जो डर गए, जो राजा डर गए, उन्होंने ब्रिटिश सुप्रीमेसी अपनाई, तो वो उन लोगों को पैसे देने लगे, मंथली, ईयर बाय ईयर, ऐसे उन लोगों को पैसे देने लगे. दिस वॉज कॉल्ड पैरामाउंटेंसी और suzerainty of the British Crown. Princely states covered 1/3 of. जो आपने प्रिंसली स्टेट्स देखे, ब्लू वाले ही देखे, ये कवर करते हैं जो प्रिंसली स्टेट्स है, जो स्टेट्स है, ये जो प्रिंसली स्टेट्स है, ये ऑलमोस्ट कवर करते हैं 1/3. ये ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द एरिया कवर करते हैं प्रिंसली स्टेट्स.
ये 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 जो प्रिंसली स्टेट्स है ना, ये ऑलमोस्ट वन थर्ड ऑफ द एरिया कवर करता है। ठीक है। पैरामाउंटेंसी मतलब मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। मतलब पैस उनका ये था ना कि पैसे ही सब कुछ है, मतलब हमको इनको लूट पाट के ले जाना है। तो तुम मोर मतलब उनके सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, उनको लूट पाट करने ले जाना है। तो उनका ये तो नहीं था कि हम राज तो करना है, डिवाइड एंड रूल करना है। पर वो हमें पैसे दे रहे तो उससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है? वो हमें खुद पैसे दे रहे हैं अपने हाथों से, उससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है भाई? फ्री में पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए पैरामाउंटेंसी मतलब मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। प्रिंसली स्टेट्स कवर्ड वन थर्ड ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर। जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो मोर देन कवर करते थे मोर देन वन थर्ड ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द। फिर तो ये दिस वॉज कॉल्ड ये पैरामाउंटेंसी और सुजनिटी of the British Crown. Princely states covered one third of the land area of the British Indian Empire, one third of the land area cover करते थे of British Indian Empire, and one out of four Indians lived under it. One out of four जो इंडियंस थे, मतलब चार में मतलब चौथ क्या बोलते हैं सर, वन ऑफ द of the British India, and one out of four Indians lived मतलब कोई चार में से कोई एक, मतलब जैसे चार लोग हैं तो वो जो एक है वो अंडर प्रिंसली स्टेट्स है, प्रिंसली रूल के अंदर है। और जो ये तीन है वो किसके अंदर है? वो डायरेक्ट कंट्रोल है ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस के। तो चार में से कोई ना कोई एक प्रिंसली रूल के अंदर ही है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आई? व्हाट वाज द प्रॉब्लम? देखो अब मैं देख लेती हूँ कुछ होता तो नहीं। Just before independence, it was announced by the British that with the end of their role of our India, paramountcy of the British Crown over princely states would also lapse. अब उन्होंने क्या बोला, जैसे हम इनको इंडिपेंडेंस, जैसे ये लोग हमें इंडिपेंडेंस देंगे, जैसे ही ये लोग हमें इंडिपेंडेंस देंगे तो वो जो प्रिंसली स्टेट के जो अल्डर है, जो स्टेट्स जो प्रिंसली स्टेट्स के प्रिंसली रूल के अंदर है, वो भी लैप्स हो जाएगा। मतलब फिर वो हमें पैसे नहीं देंगे, पैसे नहीं देंगे, उनका काम हो गया। मतलब ब्रिटिशर्स का काम हो गया, उन्होंने लूट पाट करके अब वो जा रहे हैं, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स का काम हो गया, वो हमें लूट पाट करके जा रहे हैं। तो अब जब हमें इंडिपेंडेंस मिल गई तो जो डायरेक्ट जो ये सिर्फ ये जो येलोइश पार्ट है ना, ये सिर्फ येलोइश पार्ट जो है, सिर्फ इसको इंडिपेंडेंस मिली है, सिर्फ इस येलो पार्ट को इंडिपेंडेंस मिली है, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस ब्लू? ये तो प्रिंसली स्टेट्स के अंदर है, तो व्हाट अबाउट दिस? तो ये जो तो ये इस ब्लू एरिया का कहिए, जो ब्लू एरिया है, ये ब्लू एरिया है, ये ब्लू एरिया, 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 इस ब्लू एरिया का क्या? तो भाई इन ब्लू एरिया का क्या मतलब? अब हमें तो मिल गई आज़ादी, जो येलो स्टेट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल बोल लो, तो हमें तो मिल गई आज़ादी। वेस्ट पाकिस्तान को भी मिल गई आज़ादी, ईस्ट पाकिस्तान को भी मिल गई आज़ादी, आसाम को भी मिल गई आज़ादी। तो इन सबको तो आज़ादी मिल गई, येलो स्टेट, ठीक है। तो इन ब्लू एरिया का क्या? तो हम देखते हैं आगे ब्लू एरिया का क्या। अच्छा, तो ब्लू एरिया का क्या हुआ? This meant that all these states, as many as 565 in all world, become legally.
जो 565 स्टेट्स थे जो येलो पार्ट से थे, तो 565 स्टेट्स वो सब इंडिपेंडेंट हो गए। जैसे बोल लो ईस्ट पाकिस्तान, बंगाल, बिहार, यूनाइटेड प्रोविंसेस, रामपुर, पंजाब स्टेट्स और वेस्ट पाकिस्तान और NWFP मतलब नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, जिसमें खान अब्दुल गफर खान था लीडर, ठीक है। और जैसे और क्या बोल लो, मद्रास, ये सब तो लीगली इंडिपेंडेंट हो गए थे। पर ये जो ब्लू स्टेट्स जैसे राजपुताना और अजमेर और बलूचिस्तान और ये सब जो स्टेट्स थे, ये तो लीगली जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस की अनाउंस हुआ था कि दैट विद द एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल जो इंडिया होगा वो पैरामाउंटेंसी हो जाएगा, लाइक मोर देन मीन्स क्या बोल सकता है, मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। ब्रिटिश का काम हो गया, पैसे मिल गए उसे, सब हो गया, ठीक है। ब्रिटिश का काम हो गया, सब हो गया। क्या कर रहा है यार, ठीक है। तो इतना समझ में आया कि लैप्स हो जाएगा मीन्स पैरामाउंटेंसी मोर देन एनीथिंग एल्स, मतलब इम्पोर्टेंट मोर देन of the British crown over princely states would also lapse. This meant that all these states, as many as 565 in all, would become legally independent. हम legally independent हो जाएंगे। British government took the view that all these states जो princely states थे, हम तो आज़ाद हो गए। अब जो प्रिंसली स्टेट्स थे जैसे हैदराबाद, मैसूर और राजपुताना राजपुताना और ये बलूचिस्तान स्टेट्स, ये सब जो थे वो क्या, तो ये जो सारे स्टेट्स थे प्रिंसली स्टेट्स थे, तो जो सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, हाँ, जो सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे, तो जो सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, तो इनको ब्रिटिशर्स ने क्या बोला, कुछ ऑप्शंस दिए, वर फ्री टू जॉइन ईदर पाकिस्तान और ईदर इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट इफ दे सो विश्ड। ये जो सॉरी, ये जो राजपुताना और ये जो सारे प्रिंसली स्टेट्स थे ना, ये जम्मू एंड कश्मीर, ये बलूचिस्तान, इसके इनको वो दिया था कि आपको या तो पाकिस्तान में ज्वाइन होना है या इंडिया में जाना है या खुद में ही सेल्फ सफिशिएंट होकर इंडिपेंडेंट होना है, मतलब जैसा आप चाहो आपको मिल जाएगा, चाहे आप अलग इंडिया में मर्ज होना चाहते हो, चाहे आप पाकिस्तान में मर्ज होना चाहते हो, चाहे आप इंडिपेंडेंट नेशन के थ्रू अलग रहना चाहते हो, तो आपको जैसा भी है आपकी इच्छा, आप भी मर्ज हो जाओगे। पर ये एक सेंटेंस है बहुत इम्पॉर्टेंट, तो ये ध्यान से सुनना, मैं बुक से रीड कर रही हूँ, एक मिनट, ठीक है। सो British government took the view that all these states were free to join either India or Pakistan or remain independent if they so wished. This decision, ये जो decision था was left, कहाँ किस पे छोड़ा गया था, this decision was left not to the people पे नहीं छोड़ा गया था, this decision was left not to the people but to the princely state rulers of the state। जो इस स्टेट्स के प्रिंसली रूलर्स थे उन पे ये डिसीजन छोड़ा गया, ना कि उनके जो पीपल थे, जो लोग थे, उन पे नहीं छोड़ा गया था। जो रूलर्स थे प्रिंसली स्टेट्स के, उस पे छोड़ा गया था ये डिसीजन कि क्या, ये डिसीजन छोड़ा गया था कि आपको इंडिया में रहना है, इंडिया में मर्ज होना है, पाकिस्तान में मर्ज होना है, या खुद पे इंडिपेंडेंट, लीगली इंडिपेंडेंट होना है खुद को।
एक अकेला नेशन बनना है, इंडिपेंडेंट हो, तो ये किस पे छोड़ा गया? तो रूलर्स पे, ना कि पीपल पे. This was a very serious problem and could threaten the very existence of a united India. ये यूनाइटेड इंडिया जो था वो टूट रहा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स को ये लग रहा था, ब्रिटिशर्स ने ये तीन चीज़ें उनके फ़ायदे के लिए कि भाई उनको पता था ये लोग इंडिपेंडेंस ही चूज़ करेंगे, खुद का इंडिपेंडेंस. तो क्यों? तो ये लोग इंडिया को क्या करते थे? इंडिया को स्मॉल 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 कंट्रीज में तोड़ के जाना चाहते थे कि डिवाइड एंड रूल. तो पाकिस्तान और इंडिया तो अलग कर दिया, इंडिया में भी छोटे छोटे स्मॉल कंट्रीज अलग अलग करना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि ये इतनी डाइवर्सिटी है, ये लोग एक देश बन ही नहीं पाती. अमेरिका और ये जो वो है, ये हम पे हंसते थे कि भाई इतनी डाइवर्सिटी, इतना मतलब इतनी डाइवर्सिटी के साथ. तो ये पूरा, हाँ, तो ये जो तो स्मॉल स्मॉल कर, ये अमेरिका हम पे हंसता था कि इतनी डाइवर्सिटी है, ये लोग जो प्रिंसली स्टेट्स है ये अलग अलग अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना चाह रहे, ना कि इंडिया में मर्ज हो रहे, ना कि पाकिस्तान. ये खुद पे इंडिपेंडेंट, तो छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे इंडिया के. फिर आगे देखते हैं, ठीक है. तो जस्ट मूव फॉरवर्ड. The decision was left not to the people. क्या लिखा है? not to the not to the people but to the princely rulers. किस पे छोड़ा गया था डिसीजन? princely rulers पे of these states. This was the very serious problem and could threaten the very existence of a united India. थ्रेटन कर सकती थी ये जो वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द यूनाइटेड इंडिया है. ठीक है, अंडरस्टूड? इतना समझ में आया सबको? अब प्रॉब्लम क्या थी? व्हाट वाज द प्रॉब्लम? व्हाट वाज द मेजर प्रॉब्लम? तो फर्स्ट ऑफ ऑल द रूलर ऑफ Travancore announced that the state had decided on independence. मैंने जैसे बोला था कि इंडिपेंडेंस. The Nizam of Hyderabad made a similar announcement in the next day. Princely states, वो ये राजा लोग ये करते हैं कि भाई पावर अपने पास कॉन्सेंट्रेट रखते हैं, किसी और को नहीं देना चाहते. ये लोग पावर अपने पास ही रखते हैं. बहुत मतलबी लोग होते हैं ये लोग, जो पावर ना अपने पास ही रखते हैं, मतलब अपने उसमें नहीं देते, पीपल को, लोगों को नहीं देते ये लोग पावर. क्यों? क्योंकि अपने आप पावर उनके हाथों में, उनको जो करना है वो करेंगे, इसलिए इन्होंने इंडिपेंडेंस चुनी. ये जैसा चाहेंगे, जैसे उनका वो देश चलेगा. ये डेमोक्रेसी नहीं चाहेंगे, डेमोक्रेसी देश नहीं चलेगा. हाँ, तो जैसा चाहे. अब रूलर्स लाइक द नवाब ऑफ भोपाल वर एडवर्स टू जॉइन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. अब भोपाल ने भी कर दिया था, पर वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को उसने ज्वाइन कर दिया, उसको भी ज्वाइन करना पड़ा. This response of the rulers of the princely states was when that after independence there was a very real possibilities that India would get for the divided into a number of small countries. जैसे मैंने बोला था कि नंबर ऑफ स्मॉल कंट्रीज में इंडिया डिवाइड हो जाएगी. So the prospects of democracy for the people in the state also looked bleak. वो भी नहीं दिख रहा था कि डेमोक्रेसी भी हो, मतलब जो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि द सेकंड चैलेंज ये था कि टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, वो भी नहीं दिख रहा था कि वो प्रॉमिस फुलफिल हो पाएगा कि नहीं. क्योंकि भाई अब स्मॉल स्टेट्स में जम्मू कश्मीर अपना इंडिपेंडेंट हो गया, भोपाल अपना अलग इंडिपेंडेंट है. तो भाई स्मॉल कंट्रीज बन रही है इंडिया में. तो सोच रहे हो ये यूनाइटेड इंडिया नहीं है, डिवीजन ऑफ हार्ट्स करके गए हैं ब्रिटिशर्स. ठीक है, इतना समझ में आया. तो डेमोक्रेसी के आसार भी नहीं लग रहे थे भाई. दिस वॉज अ स्ट्रेंज सिचुएशन. The Indian independence was aimed at unity.
इंडिया ने क्या क्या सोचा, देखो फर्स्ट चैलेंज अपना यही था। द फर्स्ट चैलेंज एंड द इमीडिएट चैलेंज वाज टू शेप द नेशन दैट वाज यूनाइटेड। वो यूनाइटेड है पर डाइवर्सिटी है। अब तो यूनाइटेड में नहीं है, उसको तोड़ दिया उसको। यूनाइटेड येट डाइवर्सिटी येट क्या बोलते हैं उसे? हाँ, the first and immediate challenge was to shape unity and was to shape the nation that was united yet accommodative with the diversity. Diversity से तो अभी भी accommodative in our society. Second challenge ये था to establish democracy, and the third was to ensure the well-being of the society and क्या था, and well-being of the entire well-being and development of the entire society, not for the some sections. This was a strange situation. The Indian independence was aimed at unity, determination, as well as democracy. In most of these princely states, governments were run in a non-democratic, मतलब उनको जैसे चलाने वो चलाएंगे, राजा है, मोनार्की हो रहा है, and princely states, and the rulers were unwilling to give democratic rights to their people. वो नहीं चाहते कि जो उनकी पॉपुलेशंस है, जो उनके लोग हैं, वो उनको राइट्स दे। वो अपनी जो सारी राइट्स है वो अपने पास ही रखना चाहते। वो नहीं चाहता कि ये डेमोक्रेटिक हो। भाई कौन सी होश में कर रहे हो तुम? पावर जो होनी चाहिए ना, सबके पास इक्वली डिवाइड होनी चाहिए। पावर अगर इक्वली डिवाइड नहीं होगी तो जिसके पास पावर होगी वो तुम्हारे ऊपर राज करेगा, और वो राज करेगा तो वो मरते दम तक तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ऐसा था, वो लोग नहीं छोड़ रहे थे उन लोगों को। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई कि मतलब अभी तक लग रहा था कि ये तीनों चीज़ें फुलफिल नहीं होंगी। जो हमने बोला कि डेमोक्रेसी होगी, भाई नहीं लग रहा था, नहीं फुलफिल हो रही थी। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे स्टेट्स में छोटी छोटी स्मॉल कंट्रीज में डिवाइड हो रही थी। जम्मू एंड कश्मीर अलग, बलूचिस्तान अलग, वैसे तो वो पाकिस्तान में, सॉरी, वो सब अलग अलग। और हमें ब्रिटिशर्स ऐसी सिचुएशन में छोड़ के गए थे। अब आता है गवर्नमेंट्स अप्रोच। सो इतना क्लियर हुआ सबको, जहाँ तक हमने अभी तक पढ़ा, यहाँ तक द प्रॉब्लम स्टार्टेड वेरी सून, यहाँ तक जब हमने पढ़ा तो वो सबको क्लियर हुआ। कोई भी डाउट हुआ जस्ट नीचे लिख देना, डिस्क्रिप्शन बोल रही, कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं सबको मतलब सारे क्वेश्चन आंसर करने की तैयार हूँ, पर आप लिखो तो, आप सीरियस तो पढ़ाई के लिए। जस्ट डू इट। लाइक सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को कि थोड़ा और मोटिवेशन मिले मुझे, मैं और अच्छे से कंटेंट बनाऊँ और अच्छी से चीज़ें करूँ और स्मूथली चीज़ें चले। तो अब स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट्स अप्रोच। कुछ भी क्लियर ना हो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना क्वेश्चन आंसर। और मैंने जो फेमस स्पीच पूछी है जवाहरलाल नेहरू की, उसका आंसर मुझे चाहिए। जैसे ये वीडियो पहुँचेगी ना, मुझे आंसर चाहिए। जो भी देख रहा है मुझे आंसर चाहिए। क्लास 12, ठीक है। अब ये आपको पता है कौन है? हु इज दिस? ये कौन है? दिस इज सरदार वल्लभ भाई पटेल, द आयरन मैन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। Government's approach. The interim government took a firm stance against the possible division of India into small principalities of different sizes. ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट मतलब टेम्पररी गवर्नमेंट। The interim government took a firm stance against the possible division of India into small principalities of different size। जो छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज बन रही थी ना, स्मॉल डिफरेंट साइजेस की, जम्मू एंड कश्मीर और क्या था, जम्मू एंड कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर, ये सब जो अलग अलग बन रहे थे ना, तो उनको ये लोग, ये वल्लभ भाई पटेल जो है ना,
उन्होंने उनको मतलब वल्लभ भाई पटेल जी ने मतलब इनका बहुत बड़ा रोल है प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मर्ज करने का। अभी जो इंडिया इतनी यूनाइटेड दिख रही है ना, वो यूनाइटेड नहीं होती अगर वल्लभ भाई पटेल इतना हिम्मत और इतनी वो नहीं दिखाते। उनका सबसे बड़ा रोल है प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मर्ज करने का। ठीक है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे, ये तो मैंने आपको बताया जस्ट। तो द इंटरिम गवर्नमेंट, जो टेम्पररी गवर्नमेंट थी, उन्होंने स्टैंड लिया कि मतलब अब आप सोचो ना, इंडिपेंडेंस हुई अब डायरेक्ट वोटिंग नॉट पॉसिबल। बट जो लोग हैं वो तो पढ़े लिखे ही नहीं है, तो अब कैसे, उनको पता ही नहीं है कौन क्या करता है, कैसे आप उसे कैसे आप वोटिंग करवाओगे। तो इसलिए इंटरिम गवर्नमेंट बनाई, टेम्पररी गवर्नमेंट बनाई। Under the Mountbatten Plan, the princely states were free to join India or Pakistan. Sardar Patel was India's deputy prime minister. जो अपना प्राइम मिनिस्टर था वो जवाहरलाल नेहरू, और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन था? डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे during the crucial period immediately following independence. He played a historic role in negotiating with the rulers of princely states, but diplomatically and bringing most of them into the Indian Union. उन्होंने इंडियन यूनियन पे बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स को ले आए थे। इट मे लुक ईजी नाउ, बट मतलब बोलने में अभी हम जब पढ़ रहे हैं ना तो हमें बहुत इजी लग रहा है कि हाँ इन्होंने बोला और ये लोग आ गए होंगे, पर नहीं, बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि भाई अब उन्होंने मान लिया कि मुझे इंडिपेंडेंट खुद में रहना है, खुद में एक स्मॉल कंट्री बनानी है, तो फिर वो बना लेंगे। ठीक है, तो ये हुआ कि भाई बोलने में इजी लगता है पर करने में उतना ही डिफिकल्ट होता है। बट इट वॉज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क विच रिक्वायर्ड स्किलफुल परसुएशन। स्किलफुल परसुएशन, उसको स्किल होनी चाहिए आपको कि भाई कैसे एक चुटकी में लाना पड़ता है लाइन पर। 26 स्मॉल स्टेट्स इन टुडेज ओडिशा। सो जो 26 स्मॉल स्टेट, छोटे छोटे स्टेट्स, ओडिशा, सो मतलब कैसे करा होगा। Saurashtra, Saurashtra region of Gujarat had 14 big states, 19 small states, and numerous other different administration. तो उससे अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन, सोचो इन्होंने कैसे किया होगा, कैसे किया होगा इन्होंने। इतने इतने प्रिंसली स्टेट्स थे, कैसे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मर्ज किया होगा, कैसे यूनाइट किया होगा, ये हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, अभी इतना ही रहने दो। ठीक है, क्योंकि थोड़ी 48 मिनट्स की हो गई है, तो थोड़ा इतना ही रहने दो। अभी आगे कल पढ़ेंगे आप। सो like and thank you this much today, only this much. So thank you for watching, thank you for listening me peacefully, thank you for paying attention. Like, subscribe and share my channel. So thank you everyone. Just focus. Daily means, I say consistency is the key of success. So just focus, focus, focus. Just rock the paper. So now I will take a leave. Bye. Love you all. So like and subscribe my channel. Bye. Love you all. Bye.